Okay, everyone, let's start with the next chapter of our MCQs, that is company audit. Okay, chalo, go for it. As soon as I go to the next slide, the questions will start with the timer. Okay, your time starts now. Go for it. A person shall not be appointed as an auditor of a company if he has been convicted by court for an offense involving fraud and a period of dash years has not elapsed from the date of conviction. Please tell me the answer. A period of dash years has not elapsed from the date of conviction. Bolo, what is the answer? Company audit. Bolo, bolo. Section 141, subsection 3, clause H. बोलो अभी तो बोलो आंसर क्या. ओके ग्रेट, काफी लोगों ने आंसर दे दिया यहाँ पे. काफी लोगों ने आंसर दे दिया यहाँ पे. ओके, आई थिंक मेजरली आई एम गेटिंग द आंसर्स एज 10 years एंड 5 years के बीच में कंफ्यूजन है. द आंसर हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 10 years. इट इज 10 years. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? इट इज 10 years. ठीक है, चलो आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट पार्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोलो इसका आंसर क्या आएगा? Audit of private limited company is exempted from ceiling on number of audits if it's. हम कब वो 20 के गिनती में एक कंपनी को लेंगे नहीं? बोलो कब हम एक कंपनी को वो 20 के गिनती में लेंगे नहीं? Some students have answered very fast. Excellent, many answers coming and I think all of them are correct here. Great. बोलो आंसर क्या? Okay, this is a relatively easier question, so I will stop it at 15 seconds. Give your answers fast. Okay, I think all of them have given the answers. चलो, the answer is of course option number क्या आएगा यहाँ पे? Option number D. क्या आएगा? Option number D, where the paid capital is less than rupees 100 crores. Okay, let's go for the next one. Go for it. बोलो. First auditor of a non-government company is appointed by. Is appointed by who? Is appointed by who? Non-government company, other than government company. बोलो जल्दी. What is the answer? गाओ अपना गाना गाओ. BM CBM 39636 30 dash 30 dash. Okay, what's your answer? Okay, awesome. The answer is option number B. Option number B is the right answer. Fantastic, guys. Fantastic. Okay, it is by board of directors within 30 days of incorporation of the company. Okay. Again, see, if the question is very simple, I'll not wait for the entire 1 minute. Okay. If most of the students, all of the students have given their answer, then there is no point waiting. Okay. Come to the next one. Bolo iska answer. Which one of the following is incorrect? Now this is a tricky question, so go through it very carefully. Which one of the following is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सोच के बोलो, सोच के. बोलो. According to you, what is the answer? Okay, last 5 seconds almost now. Go for it. Tell me the answer. Okay, time's up. The answer is option number A. Auditor of company can be appointed as internal auditor of the holding company of the company. ये possible नहीं है. Remember our section 141 subsection 3 clause I. उस अपन ने देखा था where section 144 का रेफरेंस दिया हुआ है. वहां पे ऑडिटर यहाँ पे सेक्शन 144 के काम यहाँ पे कौन से कंपनीज में नहीं कर सकता? He cannot do it in the company, holding company and subsidiary company.
तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? काफी लोग ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी दिया था। देखो एसोसिएट कंपनी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है एज पर सेक्शन 144। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ द एसोसिएट कंपनी। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलो इसका आंसर। Auditor shall not render prohibited services specified under section 144 of the Companies Act 2. So who can he not provide these services to? Bolo. What is your answer? बोलो यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हद से ज्यादा इजी। मैंने अभी जस्ट बताया, गलती से मैंने अभी जस्ट बताया। बोलो आंसर क्या है? What is your answer? ठीक है, ओके, आई एम गिविंग यू लास्ट 5 seconds, अ वेरी सिंपल वन, वेरी वेरी सिंपल वन। ठीक है, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलो which of the following form is filed by the auditor in case of his resignation? अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन दे रहा हो तो कौन सा फॉर्म भरेगा? कौन सा फॉर्म भरेगा? बहुत ही जल्दी आंसर आ गया इसका। ओके, गो फॉर इट एवरीबॉडी, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर। व्हाट इज योर आंसर हियर? बोलो। बोलो व्हाट इज योर आंसर हियर? ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म ADT3। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर्म ADT3 आएगा यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। Any auditor removed under section 140 subsection 5 shall not be appointed as auditor of any company for a period of dash years from the date of order of tribunal. Bolo. Shall not be appointed as auditor of any company for how much? How many years? For how many years? ओके, कुछ लोग यहाँ पे 10 बोल रहे हैं, कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। ओके, गो फॉर इट, सोच के बोलो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव गिवन द आंसर हियर। काफी फटाफट आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, काफी लोग लेकिन रॉन्ग भी गया। आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन हियर, तो क्लियर कर दो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 years एंड नॉट 10 years। 10 years तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज 5 years। नोट ध्यान से पढ़ो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था। ओके, काफी लोग ने राइट भी दिया यहाँ पे आंसर, तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग आंसर 10 आया था। एग्जाम में ध्यान देना, डोंट मेक एन एरर। ओके, चलो नेक्स्ट बोलना यहाँ पे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू which companies? Rotation of auditor is always applicable to which companies? Very simple answer, very simple answer, very simple answer। सोच के बोलो, सोच के। अरे रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब अपना गाना कौन सा आएगा यहाँ पे? ठीक है, विच इज द सॉन्ग दैट वी लर्न टू लर्न द एप्लीकेबिलिटी, अपना LOS ऑल वाला, LOS ऑल, पुक पुक पुक, PB फ्रॉम FPB, 50 10 50। बोलो व्हाट इज द आंसर? ओके, आई एम गिविंग यू लास्ट 5 seconds। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, गो फॉर इट। ठीक है, द आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिस्टेड कंपनी। क्या आएगा यहाँ पे? लिस्टेड कंपनी। अरे LOS ऑल, तो उसमें L क्या था? लिस्टेड कंपनी। नो, करेक्ट और नो? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में, देखो क्या लिखा है। इफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी, टर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज ऑडिटर विल बी हाउ मच? पार्टनरशिप फर्म का टर्म कितना रहेगा? पार्टनरशिप फर्म का टर्म कितना रहेगा? सोच के बोलो, व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? ओके, अभी तक जो भी आंसर है सारे करेक्ट है। ओके, ठीक है, सब लोग यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज में आंसर दे रहे हो तो अच्छा है, तो आई कैन ओनली सी व्हाट आंसर यू आर गिविंग। ओके, नोबडी एल्स कैन सी इट। ओके, द आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम 5 consecutive years, मतलब वही ना, अप टू 5 years वाला जो अपन टर्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो ऐसे 2 टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, परफेक्ट, वेरी नाइस, वेल डन। बोलो नेक्स्ट वाला। स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड व्हेन ऑडिटर
is to be removed कब? Special notice is required when auditor is to be removed when? Special notice हम कब देते हैं Companies Act में? When do we give the special notice? When do we give the special notice? When do we give the special notice? बोलो बोलो, सोच के बोलो. कब निकालने के लिए? ऑडिटर को कब निकालने के लिए? बोलो. Okay, I'm giving you last 5 seconds. Okay, I'll wait for more 5 seconds. बोलो आंसर. Okay, I'm going to stop now. ठीक है, चलो. Let's see the answer. The answer is option number A. After the expiry of term. स्पेशल नोटिस अपन देते हैं अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4. 140 सबसेक्शन 4 है जब ऑडिटर का एक टर्म हो गया रहता है और वो टर्म होने के बाद हम बोलते हैं भाई इसको अपॉइंट नहीं करना. सेक्शन वो सबसेक्शन का नाम ही क्या है? वी वांट टू अपॉइंट एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर. बरोबर है कि नहीं है? तो जिनका टर्म हो चुका है उसके बाद किसी और का अपॉइंट करेंगे ना. सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सपायरी ऑफ टर्म. ओके, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ. गो फॉर द नेक्स्ट वन. देखो क्या लिखा है. इफ अ रिलेटिव एक्वायर सिक्योरिटी एक्सीडिंग 1 लाख, then auditor shall take corrective action within dash days of such acquisition so as to maintain the limit of rupees 1 lakh. Bolo, what is the answer? Very simple one. Very very simple. I don't think even I have to wait for more than 30 seconds. चलो जिनका देना आंसर बाकी है, चलो give me the answer. I'm waiting for more 5 seconds more. Tell me. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल. Okay, the answer is option number A, that is 60 days. क्या आएगा? 60 days. चलो नेक्स्ट वन. बोलो इसका आंसर. बोलो इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑडिटर? ये डिस्क्वालिफिकेशन में आता नहीं है. बोलो इसका आंसर. वेरी इजी वन, वेरी वेरी इजी वन. टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर. ओके, सब लोग आंसर आ रहा है, रिप्लाईज आ रहा है. वेरी नाइस. ओके, ठीक है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव गिवन द आंसर. सबका आंसर आई थिंक आ गया रहेगा यहाँ पे. काफी बहुत ज्यादा आंसर है एक साथ. ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, एनी पर्सन हुज एज इज एक्सीडिंग 65 ईयर्स. क्या बोल रहा हूं मैं? एज इज एक्सीडिंग 65 ईयर्स. ओके, सो दिस पर्सन, ऐसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं, एज बैरियर है ही नहीं यहाँ पे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट पे. ठीक है, तो ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं जो एज बेस्ड है. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. बोलो इसका आंसर. फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज अपॉइंटेड बाय हु? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, बोलो कौन अपॉइंट करेगा? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, बोलो हु विल अपॉइंट? BM CBM 39636. बोलो व्हाट इज द आंसर? परफेक्ट परफेक्ट, एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट, वेल डन वेल डन. ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बाय CNDG विद इन हाउ मेनी डेज? 60 days of incorporation of the company. ठीक है. Okay, go for the next one. The auditor shall furnish his written consent and certificate to the company. कब? The auditor shall furnish his written consent and certificate to the company. कब? Subsequent auditor अपॉइंट होने के बाद कब देगा ये कंपनी को? कब देगा ये कंपनी को? कब देगा ये कंपनी को? बोलो व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? ये ट्रिक क्वेश्चन है. जो आपको आंसर सामने दिखता हो, जो लग रहा है आंसर, वो आंसर नहीं है. ठीक है, ट्रिक क्वेश्चन है. ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सोचो प्रोविजन के बारे में, ध्यान से सोचो. चलो, आई विल गिव यू मोर 5 सेकंड्स. टेल मी द आंसर. टेल मी द आंसर. एक काम करते हैं, फुल टाइम ले लो, लेकिन मेरे को आंसर सोच के देना, सोच के. प्रोविजन याद करके बोलो. कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में. मेरा इंटेंशन था कंफ्यूज करने का, बट टेल मी द आंसर. ठीक है, चलो, आई विल टेल यू द आंसर हियर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. काफी लोग का राइट आया था. देखो, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, वो जो विद इन 15 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट है ना, ये कंपनी को आरओसी को इन्फॉर्म करना है. कंपनी हैज टू इन्फॉर्म आरओसी इन फॉर्म ADT 1 कि देखो यहाँ पे हमने ये इंसान को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया. ठीक है, दैट इज योर विद इन 15 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. ठीक है, ये आ गया अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. ऑडिटर पे कोई रोक टोक नहीं, ऑडिटर पे ऐसा कोई बोला नहीं है कि इतने दिन में देना चाहिए करके. ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव रिटन बिफोर हिज अपॉइंटमेंट. ठीक है,
ट्रिक क्वेश्चन था ये, अच्छे से करना एग्जाम में, मिस्टेक मत करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, टेन्योर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज डैश। टेन्योर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज डैश, बोलो, is dash. Tell me the answer. What is the answer according to you? What is the answer according to you? ठीक है, काफी इजी है, तो सीधा टेक्स्ट बुक से उठा के दिया है। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वेकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी इज कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, then appointment by board of directors shall also be approved by company at general meeting within dash months of the recommendation of board of directors. Within dash months. Tell me the answer. Tell me the answer. What is the answer according to you? Which option according to you is the right answer? Very simple question. ठीक है, बहुत easy है। ठीक है, तो that is within 3 months. Within 3 months. Okay. Fantastic guys. काफी लोगों का आंसर एकदम फास्ट आ गया था और भी सही आंसर। Very nice. Tell me this question का आंसर। Rotation of auditor is applicable on unlisted public company if, and now सोच के बोलो आंसर क्या आएगा इसका। Think carefully and tell me the answer. Rotation of auditor is applicable to unlisted public company if, सोचो, LOS all, पुक पुक पुक, PEB from FPB, 50 10 50। अपना गाना ये था, एप्लीकेबिलिटी याद रखने का। बोलो, व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? ओके, ओके, इट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, बहुत लोग का सही आ रहा है यहां पे। ओके, ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इट्स पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, 50 10 50 एंड इट वाज 10 प्लस। अपन लिखा थे तभी 10 प्लस करके, तो इट इज 50 10 50। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ऑडिटर ऑफ कंपनी? कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करना प्रोहिबिटेड नहीं है? ऑफ कोर्स, अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 144। बोलो, अपना जो रॉक ऑन वाला गाना है उसमें कौन सा नहीं आता? कौन से वर्डिंग्स नहीं आते? बोलो बोलो, ये सब मैंने समझा दिया है क्लास में, और मेमोराइजिंग करने के लिए अपन ने रॉक ऑन का गाना यूज किया था। तो टेल मी द आंसर। व्हाट इज द आंसर हियर? ओके, इजी एकदम, वेरी सिंपल ना। ठीक है, ठीक है, बहुत फटाफट आंसर आ गया यहाँ पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो इसी बात पे एक बार रॉक ऑन का गाना हो जाए एक बार यहाँ पे। ओके, वंस कैन यू सिंग रॉक ऑन सॉन्ग? क्या बोलते हो यहाँ पे? अरे चैट एरिया में बोलो सब लोग यहाँ पे, एक बार रॉक ऑन का गाना हो जाए यहाँ पे। चलो 1 2 3 स्टार्ट। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी FIS, accounting and bookkeeping services, actuarial services, rendering of outsourced financial services, investment advisory services, investment banking services, management services, internal audit and any other kind of services as may be prescribed. Clear है? तो इसमें टैक्स ऑडिट नहीं आता है, that is why the answer is option number B. Okay. नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज मेड बाय ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन फ्रॉड अमाउंट इज डैश। व्हेन फ्रॉड अमाउंट इज डैश, बोलो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? व्हेन द फ्रॉड अमाउंट इज डैश। इसमें मुझे लगता है दो ऑप्शन में बहुत भारी जंग होने वाला है यहाँ पे। ओके, बिटवीन द टू ऑप्शंस यू विल हैव ट्रेमेंडस फाइट टुडे। ओके, टेल मी द आंसर। बोलो व्हाट इज द आंसर? सोच के बोलो, सोच के, ध्यान से पढ़ा होगा तो सीधा एक आंसर आ जाएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो दो ऑप्शन में डाउट आएगा यहाँ पे। बोलो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? ओके, चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द आंसर। चलो, द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ एंड अबव। क्या है? डी, दैट इज 1 करोड़ एंड अबव। ठीक है, 143 सबसेक्शन 12, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। ओके, रेड विद रूल 13, इसमें अपन ये देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द ऑडिटर, such removal is made to such application होना चाहिए, such application
फॉर द रिमूवल इज मेड टू हु? अपन ये एप्लीकेशन फॉर रिमूवल किसको देंगे यहाँ पे निकालने के लिए ऑडिटर को? बोलो, कंपनी ये एप्लीकेशन किसको देगी? कंपनी ये एप्लीकेशन किसको देगी? कंपनी ये एप्लीकेशन किसको देगी? सोचो और बोलो, व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? अगर पता होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर पता होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट सेक्शन एंड द सबसेक्शन नंबर। Okay, I think all of you all are given the answer. Okay, the answer is option number A. क्या आएगा option number A? Easy एकदम, easy. Okay, that's it. Those are the questions for MCQs in relation to company audit. In relation to what? Company audit.